السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ بہار بورڈ سے کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کا اردو ہے تو وہ اس چینل سے جڑ جائیں، ان کی اردو کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ کلاس 10 کا گرامر پڑھنے والے ہیں، اردو قواعد، اور ایک خاکہ پیش کریں گے کہ 10th میں ہم سے گرامر سے کس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں، کس طرح سے پرشن پوچھے جاتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں وہ قواعد جو میٹرک کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو پوچھا ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے اس سے مل کر کلمہ بنتا ہے، اور کلمہ جب بنتا ہے تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ ہوگا تو وہ ایک معنی دار ہوگا یا غیر معنی دار ہوگا۔ تو معنی دار کو موضوع بھی بولتے ہیں اور کلمہ بھی بولتے ہیں، اور غیر معنی دار کو مہمل بولتے ہیں۔ اتنی گہرائی تک آپ سے نہیں پوچھی جائے گی، یہ پوچھی جائے گی کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھی جائے گی کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، فعل ماضی، حال اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں یہ بھی پوچھ دیں گے۔ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ ماضی میں ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ جیسے کہ حامد کھانا کھا چکا، حامد کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے فعل حال یعنی کہ پرزینٹ، جیسے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تم جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم جاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ سب حال میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے ہے مستقبل، یعنی کہ میں یہ کام کروں گا، میں کھانے کے بعد یہاں جاؤں گا۔ تو گا گی گے جس میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مستقبل ہے، یعنی کہ فیوچر ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہ پوچھ لے گا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اور اسم کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو اسم ناؤن کو ہم سب جانتے ہیں، ہر کوئی نام، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ سب اسم ہیں، اس کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو جامد، مصدر، مشتق بناوٹ کے اعتبار سے، اور معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ یا کوئی چیز کی جب نام ہوگی تو یا تو وہ چیز سخت ہوگی یا نرم ہوگی یا لال ہوگا یا کوئی بھی رنگ ہو، یا جس طرح جیسے کہ ہم کسی چیز کا نام لے لیں کہ فریز ہے، تو فریز ہم بتائیں گے کس کلر کا ہے، تو لال ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ یہ اسم صفت میں آئے گا۔ اور اسم ذات کیا ہوا؟ یہ ذات، یہ ہوا اس کا نام، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آتا ہے، پوچھ لے گا آپ سے کہ اسم جامد، اسم جامد کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو اسم جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم معرفہ کسے؟ کوئی خاص نام کو، جیسے لال قلعہ، ٹھیک ہے، جیسے لال قلعہ یا مسجد حرام، یعنی اور اسم نکرہ جیسے آدمی، پیڑ، درخت، ٹھیک ہے، کوئی بھی جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوں وہ اسم نکرہ آ جائے گا۔ اور اسم معرفہ میں جو کسی خاص چیز کا نام تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ اب اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علم، علم کہتے ہیں نام کو۔ ضمیر، ضمیر کے کہتے ہیں وہ نام، جیسے ہم لوگ پڑھے ہوں گے نا، ہی، یو، یہ سب کیا ہوا؟ ضمیر ہوا۔ یو، یورس، شی، ہز، اٹس، یہ سب ضمیر ہوا۔ اور اسم اشارہ جیسے یہ، وہ، یہاں، وہاں، یہ سب اسم اشارہ۔ اور موصول جیسے جس کا، جس میں، جس کے لیے، اس کا معنی دو وہ اسم موصول۔ مضاف جو جس کی اضافت کسی کی طرف سے کر کے بولا جائے، جیسے زید کا بیٹا، تو یہ مضاف اضافت ہو رہی ہے۔ معہود جو کسی قرینے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو اس کو معہود کہتے ہیں۔ منادا جس سے کسی چیز کو آواز لگا جائے، جیسے اے، ٹھیک ہے، یا ابازر، ٹھیک ہے، اے لڑکے، اس طرح سے اس میں منادا کہتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ آگے گہرائی تک آپ سے نہیں پوچھی جائے گی 10th میں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی پڑھیے جتنا آپ کو ضرورت ہو، باقی آپ آگے پڑھیے گا، اور یہیں سے آپ گہرائی میں پڑھیے گا تو الجھ جائیے گا، آپ کو بیس نہیں معلوم ہو پائے گا، اور یہاں ہم لوگ کو بیس مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل
में वाहिद का जमा बनाएं, जो भी लफ्ज़ है उसके वाहिद है, सिंगुलर है, उसका जमा बनाएं। तो ज़िद की जमा क्या होगी? अज़दाद। मौका की जमा मौाक़े, मसला की जमा मसाइल, ठीक। खिदमत की जमा खिदमात, मंजिल की जमा मनाजिल, सबक की जमा असबाक, ठीक। और उसके बाद है सिन्फ़, सिन्फ़ की जमा असनाफ़, सवाल की जमा सवालात, अज़्म की जमा अज़ाइम, इम्तिहान की जमा इम्तिहानात। जो भी पॉपुलर लफ्ज़ है जो पूछे जाते हैं आम तौर पर 10th में, वो सब लफ्ज़ है, ठीक है। और इसके बाद है जी साबिक़ा। साबिक़ा किसे कहते हैं? साबिक़ा किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लग कर उसका हिस्सा बन गया हो, उसे साबिक़ा कहते हैं। जैसे दरअसल, दरकिनार वग़ैरह। यहाँ पे दर है, क्या है? साबिक़ा है। और असल एक लफ्ज़ है, उसके आगे लगकर क्या बन गया? दरअसल, दरकिनार। तो ये क्या हो गया? साबिक़ा लफ्ज़ हो गया, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। और लाहिक़ा किसे कहते हैं? लाहिक़ा वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में मिलकर उसका हिस्सा बन गया हो। जैसे अलम बरदार, फरमा बरदार, ताबेदार। तो इसमें लास्ट में क्या मिला? दार, ठीक। लास्ट में क्या मिला? दार। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। फरमा बरदार में भी दार लगा, ठीक है। अलम बरदार में भी दार लगा। और उसके बाद हम लोग उर्फ़, उर्फ़ किसे कहते हैं? जो नाम के अलावा जो दूसरे नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे वो नाम जो माँ बाप या घर वाले की तरफ से, वो नाम जो माँ बाप या घर वाले की तरफ से जैसे रख दिया जाए, जैसे कल्लू, लल्लू वग़ैरह। ये क्या आएगा? उर्फ़ में आएगा। लक़ब किसे कहते हैं? वो नाम जो आवाम की तरफ से किसी ख़ास अमल की वजह से रख दिया गया हो, जैसे बिल्ली वाला, सब्ज़ी वाला, तेल वाला वग़ैरह। हमने यहाँ पर वो मिसाल दिया है जिससे आप समझ लें, और वो जो किताब में लिखी हुई बातें होती है उस मिसाल से ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो मिसाल जिससे आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ख़िताब। ख़िताब कहते हैं वो नाम जो किसी ख़ास सलाहियत की वजह से, उसकी ख़ास टैलेंट की वजह से हुकूमत की जानिब से या किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से रख दिया गया हो, जैसे भारत रत्न, नदवी, बैरिस्टर, अज़हरी वग़ैरह। ये क्या हुआ? ख़िताब हुआ। और कुन्नियत किसे कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं माँ बाप की तरफ या बेटे की तरफ निस्बत करके बोला जाए, जैसे अबुल क़ासिम इब्न मरियम, इब्न मरियम, उम्मे मक्तूम बिनते फ़ातिमा। कुन्नियत में आपको कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप समझिए कि जिसमें इब्न, बिन्त, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, अबू, तो वो समझ लीजिए कि वो लफ्ज़ कुन्नियत है, ठीक। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं शायर अपना नाम या अपने नाम की जगह कोई और नाम शेर के आखिर में इस्तेमाल करे, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल में है, शबनम बेनवा को तू दे दे उरूज बंदगी। तो यहाँ पर शबनम क्या है? तखल्लुस है, ठीक है। गालिब अपना नाम पे गालिब तखल्लुस कहते हैं। दिल खैराबादी है एक, वो अपने शेर के आखिर कलाम में दिल तखल्लुस कहते हैं वग़ैरह, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और भी अर्ज़ कर देते हैं कि शेर के पहले हिस्से को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। बीच, दूसरे, तीसरे ये सब नहीं। शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं? तो मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला, ठीक है। मतला, मतला कहते हैं। शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं? मतला। और शेर के आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं? तो मक़ता, मक़ता कहते हैं, ठीक है। शेर के आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं? मक़ता। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ जी। अब इसमें क्या बताना है? लफ्ज़ ज़ालिम की ज़िद बताना है, अपोज़िट, ठीक है। अपोज़िट क्या होगा? तो इसमें हम ऑप्शन भी लगा दिए हैं। अलिफ में है मुअज़्ज़ज़, मुजरिम, जुल्म, मज़लूम। तो ज़ालिम है, जुल्म करने वाला है, तो मुअज़्ज़ज़ तो होगा नहीं, मुजरिम तो होगा नहीं, ठीक है। जिस मुजरिम कहते हैं जिस पर जुर्म आयद हो जाए, जुर्म साबित हो जाए। जुल्म तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मज़लूम। इसका क्या होगा आंसर? मज़लूम। उसके बाद लफ्ज़ आसमान का ज़िद बतलाएं। आसमान का ज़िद क्या है? उफ़ुक़ नहीं। खुर्शीद, खुर्शीद का मतलब होता है सूरज।
आफ्ताब, आफ्ताब का मतलब भी सूरज। ज़मीन क्या होगा, इसका आंसर होगा ज़मीन, ज़मीन इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है लफ्ज़ इशरत। अब हम लोग बोलते हैं ना ऐशो इशरत, आराम, ऐशो आराम, तो ये आराम समझ लीजिए। तो आराम का और इशरत का ज़िद क्या होगा, मुसर्रत, गम, नुसरत, शराफत। क्या होगा, तो इसका ज़िद होगा गम। ठीक है। लफ्ज़ दुआ का ज़िद क्या होगा, लफ्ज़ दुआ का ज़िद होगा, लफ्ज़ दुआ का ज़िद क्या होगा, मदह, बद्दुआ, तारीफ़, मरसिया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बद्दुआ। ठीक है। और लफ्ज़ शिकस्त का ज़िद क्या होगा, लफ्ज़ शिकस्त का ज़िद, शिकस्त कहते हैं किसी को हरा देना, तो शिकस्त का हार तो जीत होगा, हार तो कि उसका ज़िद क्या होगा, जीत होगा। तो शिकस्त का ज़िद होगा फ़तह। ठीक है। नुसरत भी नहीं होगा, इसरत भी नहीं होगा, राहत भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फ़तह। उसके बाद है मुहावरा। ठीक है। मुहावरा, पानी पानी होना का मतलब क्या है। ठीक है। मुहावरा, पानी पानी होना का क्या मतलब है। तो घर में पानी पानी होना, बहुत ज़्यादा पानी होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, बहुत गुरूर होना। इसका आंसर होगा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। ठीक है। मुहावरा आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या है, मुहावरा आस्तीन चढ़ाना का मतलब है, क्या होगा, मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, लड़ने को तैयार होना, यही इसका आंसर होगा, लड़ने को तैयार होना। मुहावरा नाक में दम करना का मतलब क्या है, परेशान करना, बेपरवाह, नाक में दवा डालना, तो इसका क्या होगा, परेशान करना। अब हम आपको एक खाका पेश किए थे कि 10th में जो ग्रामर पूछे जाते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं, सिर्फ इसमें एक चीज़ रह गया है, वो मुतरादिफ। ठीक है। बाकी इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके सामने एक खाका पेश करने की कोशिश की है, जिससे आप ये समझ लें कि इसी तरह से ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं, और वो 50 नंबर के होते हैं, और 50 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर दूसरे सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।